सर ये रेडियो स्टॉल हुई है, इंडिया रेडियो स्टॉल राजकीय परमादनी राज्यपाल महोदय लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक जी सेवानिवृत्त प्रधान जी का 16वां एपिसोड आज प्रसारित होगा आकाशवाणी दूरदर्शन तथा विभिन्न चैनल पर। राज्यपाल महोदय अब अपने आसन की ओर अग्रसर होते हुए और उनका अभिनंदन स्वागत हाथ जोड़कर सभी लोगों के द्वारा। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। आकाशवाणी ईटानगर के डेप्यूटी डायरेक्टर एन रमन जनप्पा राज्यपाल महोदय जी को स्नेह प्रदान करते हुए और आकाशवाणी ईटानगर की स्नेह प्रदान करते हुए और एक मेमेंटो आकाशवाणी ईटानगर की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। On this momentous occasion, I take opportunity to welcome His Excellency Lieutenant General K.T. Patnaik, retired sir, Honorable Governor of Andhra Pradesh. Welcome you, sir. And I also would like to extend warm welcome our most honored and respected First Lady of State. Welcome, ma'am. I would like to welcome all our prides of state, all the Padma awards present here, and the true people of Mann Ki Baat who participated in the program and got mentioned by Honorable Prime Minister. Welcome you all. I also welcome all the special invitees, representatives and various CBOs, other dignitaries, students from various colleges and schools, and media personalities. I, on behalf of All India Radio and Doordarshan, PIB, Central Bureau of Communication, Regional Office Itanagar, under Ministry of Information Broadcasting, would like to welcome you all again for the special screening of 100th episode of Mann Ki Baat today here at Raj Bhavan, Itanagar. Thank you once again. Jai Hind, Jai Arunachal. So today I would like to share my experience on being mentioned in one of the Mann Ki Baat episodes. And when we were mentioned, we were very much excited and taken aback also. But before that, I would like to tell the journey of how we started. So in the year 2020, during the pandemic, we had installed one small street library on being inspired by the Mizoram Street Library. One of the librarian had set up a free roadside library. So one fine day I stumbled upon this wonderful street library. Then I thought, why not emulate the same thing in our state? So that's how we started. And after that, slowly and steadily we progressed, but there was not much response from the society. But after being mentioned in the Mann Ki Baat episode, then it took a very big leap, and so far we have created more than 25 street libraries, and also we have traveled across many different places to give awareness on reading books and also promote reading culture in our state. And I'm so sorry I could not acknowledge sir, ma'am. Actually this is first time being in the presence of such a big audience, so I'm really sorry for that. So
Yes, and after that, and we were being called to Delhi as well for the program to be a part of the Man Ki Baat episodes for 5-day tour. So we are very, very humbled, and we look forward that we keep on continuing our service to the society. हमारे मोन रीजन में सदियों से एक कला था जो कागज़ बनाने का कला था, जिसको हम लोग मोन शुगु के नाम से जानते हैं। और ये कला जो है सदियों से हमारे यहाँ चले आ रहा था। जब कागज़ की भी नहीं हुआ था, उसी समय से ये कागज़ बनाने का जो कला है हमारे क्षेत्र में था। और इसको एक शुगुशेंग के नाम से जो वृक्ष होता है, छोटा एक श्रब फैमिली में आता है, तो उसकी खाल को निकाल के इसका कागज़ बनाते हैं। तो ये एक कला सदियों से चला आ रहा था हमारे मोन रीजन में। इसको हिमालय के अलग रीजन जैसे सिक्किम जैसे जगहों में भी होता है। तो ये जो कला है आज मॉडर्न समय के साथ में जो कागज़ के नए टेक्नोलॉजी से जो कागज़ आए हैं, उसके साथ साथ में जो ये हमारी जो पुरानी कला था वो लुप्त हो रहा था, लगभग ख़त्म हो रहा था। तो क्योंकि इसमें इसको बनाने के लिए पूरी तरह से मैनुअल है, इसमें कोई केमिकल कुछ भी चीज़ का बाहर से उपयोग नहीं होता है, तो ये लुप्त हो रहा था कला। तो उसी कला को हमारी एक संस्था है यूथ एक्शन फॉर सोशल वेलफेयर, उसने इस कला को फिर से जीवित करने का जो कार्य किया था। इसमें हमारे देश के खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन KVIC के सहयोग से इस कला को हम लोगों ने फिर से समाज के सामने जीवित करने का जो कार्य किया, उसी हमारे काम को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात की एपिसोड में 30 जनवरी 2021 का में इसका उल्लेख करके पूरे देश भर के लोगों को इसका ज्ञान और मालूम हुआ है। उसके पश्चात गवर्नमेंट की तरफ से भी सहयोग हुआ और इसका जो डिमांड है वो भी हमारे पास में काफ़ी डिमांड आया है। तो इसको एक स्मॉल स्केल के रूप में अभी हम लोग तवांग में हेडक्वार्टर में शुरू किया है। तो इसमें क्योंकि पूरा मैनुअल होता था, इसको हमने अगर कमर्शियली वायबल करना है तो इसमें कुछ जोड़ना होगा करके थोड़ा बहुत स्मॉल मशीनरीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें। जैसे इसमें इसकी जो बनता है वो खाल से उसको बहुत बीटिंग करना पड़ता है, तो मैनुअली तो उसको मशीन से बीटिंग किया जाता है। इसको धूप में बाहर सुखाना होता है, तो उसके लिए भी एक हीटिंग का भी एक प्रोविज़न किया है ताकि धूप नहीं भी होने से। तो इस तरह से इसमें इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं। इसके साथ में अभी हम लोग मिल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडमेड पेपर है जयपुर में, उस संस्था के साथ मिल के एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका इनोवेशन किस प्रकार से इस प्रोडक्ट का और डाइवर्सिफाई किया जाएगा, तो उस पर भी रिसर्च हो रहा है। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात की एपिसोड के कारण से इसका बहुत ही पब्लिसिटी पूरे देश भर में हुआ। इसका ऑनलाइन सेल भी आप KVIC ने खादी ग्राम उद्योग के द्वारा शुरू किया है, तो इसका डिमांड भी काफ़ी आ रहा है। तो इस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अपने मन की बात में रख के इसका जो है अब पूरे दुनिया के सामने आके इस पर बहुत सहयोग मिला है। हम उनका बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। और आज इस 100वें मन की बात की स्क्रीनिंग पर उनका हार्दिक अभिनंदन। आप सबको ताशी दिले और अभिनंदन। थैंक यू। ngô Modi mi gì mà Modi gì mà ngô ai ru koi dun kapal koi dun ngok adiam ngolo ngok doglu lo bu tawar ko pulik binama hupak ngolo ai ru dun kosto atil kakumang kera ada lo tawar kakolo pun bom ne lorki lorka kidinga pura kostola dukto punno lulung mu di kham yam hupang bi tawar ko ngok yor singu da lo pulik binama ai ru ngo Modi ji ma koi dung hupak ai ru pa bước Việt Nam am kom ai yemola bojeko ngo dolu lok deila hologa buri bura ki dingam kom loti loka ki dingam kom ngolu adi ke
akiribat ko bum kom dipelagi dung modi jike yenam lo boje ko bum aila doni polo ke ayang kolok turmo laju emla ngol kom kum la bum yedung modi jima aharu de ngo ndoluga ngom hologa hek pedaga do ager ibo lubo nam hum kom airu ngo koidong ngo yumma kom adiabua hekenalo dagi yehol ekayhol ngo ken himangai inama airu ngo nolom hum ibona lubona rubo pabona kidi am kom ngo airu pe koidong ngo tu hekada ko de he yehol ken he mang anyong kokom delok lega ngo takam nolom doni polo ka ayang kolok hum ager hum rulen hannen bona mulen ngollen bona amiame doni polo ka ayang kolok airu pe turgi mola emla ngo kumdung le ngok agom. थैंक यू। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने मन की बात कार्यक्रम में विभिन्न एपिसोड में इनका जिक्र किया है। उन्हें अब स्नेह भेंट प्रदान करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री ताकार तालो जी, गांव बूढ़ा जोर सिंह, जिन्होंने अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया। तालियों के साथ अभिनंदन। धन्यवाद। और अंत में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर श्री दिबांग होसाई जी को कि आप भी आएँ और स्नेह भेंट स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। देवी सज्जनों, जिस खास पल का हम सभी बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो अब शुरू ही होने वाला है। मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड की स्पेशल स्क्रीनिंग अब शुरू होने वाली है, तो आइए हम सभी इससे जुड़ते हैं। तीन अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात। मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। साथियों, मन की बात मेरे लिए तो
दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। और मुझे खुशी है कि मन की बात से जो शुरुआत हुई वो आज देश की नई परंपरा भी बन रही है। एक ऐसी परंपरा जिसमें हमें सबका प्रयास की भावना के दर्शन होते हैं। साथियों, मैं आज आकाशवाणी के साथियों को भी धन्यवाद दूंगा जो बहुत धैर्य के साथ इस पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं। वो ट्रांसलेटर्स जो बहुत ही कम समय में बहुत तेजी के साथ मन की बात का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करते हैं, मैं उनका भी आभारी हूं। मैं दूरदर्शन के और माय गॉव के साथियों को भी धन्यवाद देता हूं। देश भर के टीवी चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो मन की बात को बिना कॉमर्शियल ब्रेक के दिखाते हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आखिरी में मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा जो मन की बात की कमान संभाले हुए हैं, भारत के लोग, भारत में आस्था रखने वाले लोग। ये सब कुछ आपकी प्रेरणा और ताकत से ही संभव हो पाया है। साथियों, वैसे तो मेरे मन में आज इतना कुछ कहने को है कि समय और शब्द दोनों कम पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सब मेरे भावों को समझेंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे। आपके परिवार के ही एक सदस्य के रूप में मन की बात के सहारे आपके बीच में रहा हूं, आपके बीच में रहूंगा। अगले महीने हम एक बार फिर मिलेंगे, फिर से नए विषयों और नई जानकारियों के साथ देशवासियों की सफलताओं को सेलिब्रेट करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपने देखा कि मन की बात प्रधानमंत्री जब भी इसको जाहिर करते हैं तो वो दिल को छू जाती है। वो इसलिए कि ये सब हमारी निजी ज़िंदगी से जो है इसका ताल्लुक़ है। वो सब बातें जो वो बता रहे हैं वो आपको और मुझे भी लागू हैं। हमारे घर में, हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे प्रदेश में वो ही स्थिति है जिसको और जिसका वो बयान कर रहे हैं। और उसमें अगर हम प्रगति लाएं, बदलाव लाएं, तो देश की उन्नति ज़रूर होगी। आज मन की बात से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और उसका मतलब है कि जो प्रधानमंत्री जी का ये उनकी जो ये पहल है मन की बात, ये लोगों को जोड़ रही है, प्रदेशों को जोड़ रही है और देश को भी जोड़ रही है। और ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे ख्याल से अगर आप अपनी नज़र आसपास घुमाएं, आप अखबार पढ़ें, टीवी देखें, तो जो भी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो आपको नज़र आ रहा है ज़मीन पे। उस किस्म की प्रगति हो रही है और यही एक विश्वास है कि देशवासी जो है प्रधानमंत्री जी से जुड़े हुए हैं, उनकी बात सुनने को तैयार हैं और जो सलाह मशवरा वो देते हैं उस पर अमल करने के लिए भी तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ कि मन की बात एक ऐसा अभियान है जो ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, रूपांतरित पहल कर रहा है और जिसके चलते आने वाले दिनों में, सालों में हम काफ़ी तेज़ रफ्तार से प्रगति करेंगे। इसके चलते एक सामूहिक उत्साह और सहयोग की भावना जागृत हो रही है। हम एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, हम एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहते हैं ताकि सारे कार्य वक्त पे पूरे हों। जो भी उनकी विचारधारा है वो चाहते हैं कि एक सामूहिक विचारधारा हमेशा हमारे साथ रहे। जो भी वो बात करते हैं और जो भी टिप्पणी देते हैं वो एक प्रेरणा का स्तोत्र है, एक गुरु मंत्र है। अगर आप ठीक से सुने तो आप ज़रूर उसको ग्रहण कर सकते हैं। कर्तव्य निष्ठा,
सेवा भाव, इन दोनों का उन्होंने जिक्र किया। और सेवा भाव हमारी संस्कृति में हमेशा जो है वो जुड़ा हुआ है। सेवा परमो धर्म, सर्विस बिफोर सेल्फ। और जहाँ तक प्रेरणा की बात है और कर्तव्य निष्ठा की बात है, वो भी हमें विरासत में मिली है। तो जो व्यक्ति अपनी पूरी मेहनत से, लगन से काम करता है, वो हमेशा अपने उद्देश्य को पाएगा। और यही बात प्राइम मिनिस्टर साहब आपको समझा रहे हैं। तो ये सब मिला के मैं समझता हूँ कि एक सशक्त बदलाव की राह पे हमें ले जा रहे हैं। और इसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है देश प्रेम की भावना, देश निर्माण की भावना। हम छोटे छोटे कार्यों से भी अपने देश निर्माण में भागीदार बन रहे हैं। ये बात उन्होंने कही कि आप सब भागीदार हैं देश की तरक्की में, क्योंकि आपने जो अच्छे काम किए हैं वही जो है देश को आज आगे ले जा रहा है। तो आइए हम इन सब प्रयासों से और जो ये सिलसिला माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू किया है उसमें भागीदार बने और उसको सफल बनाएं। तो मैं आखिर में यही कहूँगा कि अरुणाचल वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग यहाँ उपस्थित हैं और आशा करता हूँ कि आने वाले वक्त में आप भी एकजुट होके मिल के अच्छा काम करेंगे, जिसमें आपका प्रदेश और हमारा देश दोनों प्रगतिशील होगा। धन्यवाद। जय अरुणाचल, जय हिंद। मुझे आज राजभवन में मन की बात के 100वां एपिसोड देखने को मिला। यहाँ दूरदर्शन, आकाशवाणी द्वारा बहुत अच्छा से प्रबंध किया गया था, जहाँ हमारा स्टेट का जो एचिवर्स है, मन के बात में जिन लोगों का नाम उल्लेख किया था, जिन लोगों के साथ बारे में दिखाया था, उन लोगों के उपस्थिति में हम लोगों ने ये एपिसोड देखा तो बहुत अच्छा लगा। इस एपिसोड में हमारा प्रधानमंत्री जी ने पहले उन्होंने क्या क्या एपिसोड दिखाया था, किसके साथ क्या प्रेरणादायक चीज़ें दिखाए थे, ये सब बारे में थोड़ा थोड़ा उल्लेख किया और वो बहुत ही प्रेरणादायक रहा। अच्छा बात तो ये है कि ये मन का बात 100 एपिसोड से ख़त्म नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि ये अगले महीने में भी फिर होगा, तो हम आशा रखते हैं कि ये एपिसोड चलते रहेगा, भारतवासी को प्रेरणा देते रहेगा और हमें अपना देश को, अपना स्टेट को आगे ले जाने में सहायक होगा। मन की बात कार्यक्रम जो अक्टूबर 14 में शुरू हुआ था, 3 अक्टूबर को, तीसरी एपिसोड में, दिसंबर 14 की एपिसोड में माननीय प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि उन्होंने मन का एपिसोड शुरू क्यों किया। उनका ये कहना था कि दुख बांटने से कम हो जाता है और सुख बांटने से डबल हो जाता है। तो वो अपनी पीड़ा जो है पूरे समाज के साथ बांटना चाह रहा है और युवाओं की पीड़ा को भी वो बांट के कम करना चाह रहा है। उसी एपिसोड में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ड्रग एडिक्शन की भी बात करी थी। तो और इस बात को सुन के बहुत सारे युवाओं ने और उनके पेरेंट्स ने उनको लाखों की तादाद में चिट्ठियाँ लिखी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने उसकी बात को लेके नियम कानून बनाए कुछ और इसमें युवाओं का फ़ायदा हुआ। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस एपिसोड से, मन की एपिसोड से युवा मन भी जुड़ता है और देश के नागरिक जो भूली भटकी बहुत सारी बातें होती हैं जिसको वो महत्व नहीं देते हैं, तो प्रधानमंत्री महोदय की बात कहने से उसमें उनका ध्यान जाता है और हम एक पॉजिटिव दिशा में, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तो युवाओं का इसमें बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो RGU के कैंपस में मैंने पैनोरमा के प्रोग्राम में मन की बात का प्रसारण कराया है।
और ये स्क्रीनिंग कराई है। तो ये सिर्फ इसलिए किया है कि युवा जुड़ सके और सकारात्मक सहयोग के साथ देश में आगे बढ़े। हमें ये क्या प्रधानमंत्री का डायरेक्ट सुनने को नहीं मिलता था सबको, क्योंकि रेडियो तो ऑलमोस्ट सब आदमी कैद करते समय सुन सकता है, बिना टीवी में भी। ये सबसे बड़ा है कि रेडियो के द्वारा सुनने को मिला सबको, कोई काम करते हुए सुन सकता है। ये एक सबसे है मन की बात कि हम सबको सुनने को मिल रहा है, और इसी द्वारा सबको भी अभी इसमें बड़ा छोटा सब हिसाब में सब इंडियन एज ए होल सुनने को मिलता है। मेरा सबसे एक अच्छा प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री का ये इस बार का जो 100वां जो एपिसोड जो मन की बात में बहुत सारा मतलब पॉइंट हर जगह हर स्टेट में इंडिया का कोने कोने में जो युवा लोग को जो अलग अलग क्षेत्र का सबको जोड़ा जाता है कि मन की बात का तरफ से। तो इसको सुन के हम लोग भी मतलब यूथ लोग भी हम लोग को उसका बात को सुन के हम लोग भी अवेयरनेस एक होता है कि एक दिल से एक तो जागृत होता है उसका बात को सुन के। तो इसलिए हम लोग भी इसे ये आज का जो एपिसोड में ज्वाइन किया है। तो हम लोग भी बहुत अच्छा लगता है कि प्रधानमंत्री का जो मन की बात जो यूथ लोग के लिए एनकरेजमेंट जो एडवाइस देता है। जैसे मुझे पहला एपिसोड जब आया था मन की बात, तो उस वक्त ही मुझे पता चला था कि मैं बहुत ओवरवेल्म फील कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है वो बहुत ही फार साइटेड है, विजनरी है। तो इससे वो हर लोगों से जुड़ना चाहते हैं, जो आज 100 एपिसोड में जो बोल रहे थे उनका जो था तो जो विजन था, जिस तरह से वो प्रोत्साहित करना चाह रहे थे, तो सारी बातें मुझे पहले ही मतलब इसका आभास मतलब हो चुका था कि ये इस तरह का रूप लेंगे करके। और एक आम जनता से भी जुड़ रहे हैं, उनके काम को सराहा जा रहा है, जो कि बहुत प्रेरणा की बात है। मतलब बाकी लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन है, और उनको जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो है ही है, वो और आगे काम करेंगे, फिर दूसरे लोग जो है उनको भी देख के वो काम करेंगे। और महिलाओं के लिए तो विशेष करके प्रधानमंत्री जी है वो बहुत जोर देते हैं, बहुत कुछ किया। आज हमें भी गर्व होता है कि हम एक महिला है। इस तरह का जो एहसास है उनके कई सारे जो इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए उसकी वजह से जी, जो हमारे प्रधानमंत्री के मन की बात की जो एपिसोड देख के, और स्पेशली वहाँ जहाँ महिला सशक्तिकरण को लेके जिक्र करते हैं, इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलेगी। और हम जो महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट के लिए हमारे जैसे संस्था जो काम कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन है कि हमारे प्रिय जो प्रधानमंत्री है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके उनका इम्पोर्टेंस और महिला क्या योगदान दे रहे हैं, इनको जो जिक्र किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आगे हमें और ये इंस्पायर करेंगे कि हम इस फील्ड में अच्छे काम करें। I would really congratulate the Prime Ministers for this very creative and innovative idea of connecting the rural masses and with this simple means of method. And this is a very powerful tool in today's world. And once again, I congratulate for completing for 100 episodes of Man Ki Baat. And we enjoyed love, and we wish him many more such episodes will come in the days to come and serve these nations and making India a very prosperous and developed nation. वो अपने मन की जो चाह है वो आगे बढ़कर आते हैं, चाहे उन्हें कोई सपोर्ट करे ना करे, वो बहुत कोशिश करते हैं वो सब करने में, और आखिरकार जाके वो सफल होते हैं। तो इसी तरह से हमें वोकल फॉर लोकल से प्रेरणा मिलती है कि हमें अगर कुछ करने की चाह है तो हमें कोशिश करनी चाहिए।